Hello students, now we are solving question number 18 of the chapter change in profit sharing ratio among the existing partners. First of all, I would like to read the question in front of you. Meeta, Gopal and Farhan were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. मीता, गोपाल, फरहान तीन पार्टनर थे, वो 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करते थे. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. कुछ टाइम बाद उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का सोचा है. वो चाहते हैं कि अब ये रेशियो 5:3:2 में कन्वर्ट हो जाए. ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड deferred advertisement expenditure rupees 30,000 and contingency reserve rupees 9,000. Goodwill was valued at rupees 4,80,000. Pass the necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on its reconstitution. इस फर्म में इन लोगों के पास डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी है, कंटिजेंसी रिजर्व भी है और गुडविल भी है. हमें सभी चीजों का ट्रीटमेंट करना है अलग अलग. Deferred advertisement expenditure is of 50 TS assets. ये शो की जाती है बैलेंस शीट की असेट साइड में. ये भी जैसे हम फंड को बांटते थे, जनरल रिजर्व को बांटते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटते थे, उसी तरीके से डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को भी पार्टनर्स के बीच में बांट के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खत्म करेंगे. लेकिन वो फंड होते थे, ये असेट है, इसको असेट की तरह बांटेंगे. कौन कौन से तीन पार्टनर हैं? मीता, गोपाल एंड फरहान. मैं डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कर रहा हूं आपके सामने. बिटवीन द थ्री पार्टनर्स मीता, गोपाल एंड फरहान. मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट बीइंग deferred advertisement expenditure written off. deferred advertisement expenditure की जो फिगर है वो 30,000 रुपीज है. इट मीन्स वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 30,000 रुपीज बिटवीन मीता, गोपाल एंड फरहान इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2:1. 30,000 रुपीज का 3/6 बैठता है 15,000. 30,000 का 2/6 बैठता है 10,000 और 1/6 बैठता है 5,000. दिस इज द एंट्री फॉर डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट कंटिजेंसी रिजर्व 9,000. जैसे हमने जनरल रिजर्व को बांटा था, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटा था, जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटा था, इन द सेम मैनर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट कंटिजेंसी रिजर्व. कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट to Meeta capital, to Gopal capital, to Farhan capital. Being contingency reserve distributed. कंटिजेंसी रिजर्व की जो फिगर है वो 9,000 रुपीज है. वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 9,000 रुपीज इन
their old profit sharing ratio, that is 3:2:1. 9,000 रुपीज का 3/6 बैठता है 4,500, और 2/6 बैठता है 3,000 एंड 1/6 बैठता है 1,500. This is the entry to distribute deferred advertisement expenditure. This is an asset, therefore this entry is passed. This is the entry for contingency reserve. This is our liability, this is our fund, therefore this entry is passed in this manner. Now we have to pass a entry for the adjustment of for goodwill. There are three partners, Meeta, Gopal and Farhan. Meeta, Gopal and Farhan. We have old ratio of Meeta, Gopal and Farhan, that is 3:2:1. This is the old profit sharing ratio, and we have new ratio of Meeta, Gopal and Farhan, 5:3:2. This is the new profit sharing ratio. Now we have to calculate sacrificing ratio for all three guys. We have formula of sacrificing ratio, that is old ratio minus new ratio. For Meeta, the old ratio is 3/6 and new ratio is 5/10. By taking LCM, by calculation, we find out that the answer is 0. Gopal, the old ratio is 2/6. The new ratio is 3/10. Taking LCM, we find out the LCM is 30. Answer is 4/30. For Farhan, the old ratio is 1/6 and the new ratio is 2/10. The LCM is 30. माइनस का 1/10. This is 9 and this is 1/10. So by calculation and by the formula of sacrificing ratio, we find out that there is a sacrifice of Gopal and there is gaining of Farhan. हम जानते हैं कि जिसकी नेगेटिव फिगर आती है उस पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और जिस पार्टनर की पॉजिटिव फिगर आती है उस पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं टू एडजस्टमेंट फॉर गुडविल. तो इस हिसाब से मेरी एंट्री बनती है कि फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट to Gopal capital account. This is the entry for treatment of goodwill. In this question, the figure of goodwill is rupees 4,80,000. We have to distribute 4,80,000 into 1/30. तो by calculation we find out the answer is 16,000. तो हमें इसमें फिल करना है 16,000. देखिए डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की हमने एंट्री पास करी, हमने इसको बांट के खत्म कर दिया.
कंटिंजेंसी रिजर्व की हमने एंट्री पास करी, इसको हमने बांट के खत्म कर दिया। जितने भी रिजर्व होते हैं, फंड होते हैं, हम इनको बांट के खत्म भी कर सकते हैं या इनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हैं। लेकिन गुडविल के केस में हम केवल एडजस्टमेंट एंट्री ही पास कर सकते हैं, हम इसको बांट के खत्म नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सारी चीजों को हम बांट के खत्म भी कर सकते हैं और इनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो ये जो 2 एंट्री मैंने करी हैं, इन 2 एंट्रीज की जगह हम एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में देयर इज नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, देयरफॉर मैंने इनको बांट के खत्म कर दिया। और गुडविल के केस में हम ये नहीं कर सकते। गुडविल के केस में हमारे पास केवल एक चॉइस होती है कि आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करिए और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए इन द केस ऑफ गुडविल। दैट्स ऑल।